Everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the second part of third chapter, that is census and sample methods of collection of data. So far we have discussed about the meaning, suitability, merits and demerits of census as well as sample methods. As we have already studied that census method is a method in which each and every item of the universe is studied and the results are drawn on the basis of this study, that is on the basis of the study of each and every item of the universe. On the other hand, in sample method, instead of studying each and every item of the universe, only few representative items are studied and results are concluded on the basis of the study of few representative items. Today we will discuss about the sample techniques, means how sample method works. As we have already studied about the definition of sample method refers to a method in which instead of studying each and every item of the universe, only few representative items are taken from the universe and the results are concluded on the basis of these few items. Now we will discuss about the sample techniques. There are 6 types of sample techniques. The very first one, random sampling. Second is the purposive and deliberate sampling. Third is stratified or mixed sampling. Fourth is systematic sampling. Fifth is quota sampling. And sixth is convenience sampling. Let's start the topic. The very first one, this is random sampling. Dear students, random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. For example, there are 100 students in the class and I want to make a committee of 5 students. I will provide equal chance of each and every item, each and every student of the class of being selected as a sample. This is the random sampling method. Now, what's about the methods used while choosing sample through random sampling? This is lottery method. In this method, paper slips are made for each item of the universe. Then, table of random numbers. Some statisticians have prepared a set of tables called tippet tables of random sampling. Let me explain the topic. कई बार हम लोग देखते हैं कि लकी ड्रॉज निकाले जाती हैं. एक फंक्शन में आप जा रहे हो और वहाँ पर एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है. तो उस लकी ड्रॉ को कैसे निकाला जाता है? जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं उन सबके नाम के स्लिप बनाकर एक बॉल में डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसमें से रैंडमली अगर एक प्राइज़ निकालना है, एक गिफ्ट निकालना है तो एक स्लिप पिक कर लेंगे. अगर 2 निकालने हैं तो 2 स्लिप्स ले लेंगे. अगर 3 सेलेक्ट करने हैं तो 3 स्लिप्स पिक कर लेंगे. तो ये बन जाता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड. आपको क्लियर है? ये रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब हम यूनिवर्स की सभी आइटम्स को इक्वल चांस देते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो सकें. क्लियर? इसी तरह से एक टिपेट हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने एक टेबल बनाई थी. उस टेबल को भी हम रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन वो टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, इससे मैं उस टेबल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी. आप अपने हायर लेवल पर जाकर इन टेबल्स के बारे में पढ़ोगे. अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो रैंडम सैम्पलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें किसी का भी चांस आ सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी क्लास में मुझे 5 स्टूडेंट्स की एक डिसिप्लिन कमेटी बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सभी 100 स्टूडेंट्स के नेम्स लेकर उसको 100 स्टूडेंट्स के स्लिप्स बनाकर उसको एक मिक्सिंग बॉल में डालकर अच्छे से शफल करके उसमें से मैं कोई 5 सेलेक्ट कर लूँगी. अब जिनके भी उसमें स्लिप से उन सबके पास चांस था कि वो सिलेक्ट हो सके. ये है रैंडम सैम्पलिंग. इसमें सबको इक्वल चांस मिलता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है. अब इसके अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, फ्यू मेरिट्स आर देयर एज वेल एज फ्यू डीमेरिट्स आर देयर. लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. दिस इज़ द रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग में आपको क्या पता लग रहा है
ये पॉपुलेशन है, मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स। इसमें से ये रिसर्च पॉपुलेशन है, रिसर्च पॉपुलेशन जो मुझे चाहिए, और उसमें से मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया। सपोज करिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं आपके सारे, इसमें से मैंने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को अलग लिया और उनमें से मैंने रैंडम सैम्पलिंग से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर किसी को भी चांस मिल सकता था, मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। नाउ मूव टू द मेरिट्स। दिस इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड। नो बायसनेस, किसी तरह की बायसनेस नहीं है। हेयर इक्वल चांसेस of being selected means each and every item of the universe is given equal chance. It is very easy method, very forward method. किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होती। अगर मैंने अभी आपकी क्लास में डिसिप्लिन कमेटी बनाई, 5 बच्चे उसमें से सेलेक्ट हो गए हैं, तो इसमें कोई भी मुझे बायस नहीं कह सकता, क्योंकि आपके सामने मैंने 100 स्लिप्स डाली थी और 100 स्लिप्स में से मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए। मीन्स दिस मैथड इज़ क्वाइट अनबायस्ड मेथड। इसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं आती। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पर क्या है कि सब चूज़ हो रहा है, बस डाला और निकाल लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर हम किसी को किसी भी तरह की वेटेज नहीं दे पाते। सपोज़ करिए मैं आपकी क्लास का एग्जांपल दे रही थी कि मुझे 5 स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन कमेटी बनानी है और मैं ये चाह रही थी कि उसमें 3 गर्ल्स आ जाएं और 2 बॉयज़ आ जाएं। मैं ये चाह रही थी, लेकिन जब मैंने 5 स्लिप्स निकाली उसमें से, तो इट मे बी पॉसिबल कि 5 के 5 ही बॉयज़ आ गए। इट मे बी पॉसिबल कि 5 के 5 गर्ल्स ही आ गई। इट मे बी पॉसिबल 1 बॉय 4 गर्ल्स आ गई। मीन्स जो मैं वेटेज देना चाह रही थी वो मैं नहीं दे पा रही। इसी तरह से अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो डिसिप्लिन कमेटी में आ जाएं, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में उनका आना और ना आना दोनों ही पॉसिबल हैं। क्योंकि मैंने 100 स्लिप्स बनाई है, इट मे बी पॉसिबल कि उन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो। इट मे बी पॉसिबल दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए। इट मे बी पॉसिबल दोनों ही सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? दिस इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मैथड। यहाँ पर किसी तरह की हम वेटेज नहीं दे पाते, क्योंकि हम यहाँ बायस नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। कीप इन योर माइंड, random sampling is a method in which each and every item of the universe is given equal chance of being selected as a sample. And the most important merit is that it is a straightforward method. It is very easy. No biasness is there, and further equal chances are provided, equal opportunity is provided to each and every item of the universe. But most important demerit is there. Most important demerit is it does not provide any weightage या extra weightage to any item. Clear beta? So this is all about the random sampling. Now we have one more question. This is the difference between random sampling and haphazard sampling. Random sampling, as we have studied, as we have discussed now, that in random sampling each and every item of the universe is given equal chance of selecting as a sample. On the other hand, haphazard sampling does not allow every item an equal chance of being selected in the sample. अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता। रूल क्या है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, जबकि हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं मिलता। आगे वाले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग से रिलेटेड होंगे। सो कीप इन योर माइंड, रैंडम सैम्पलिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग एंड प्रोवाइड्स इक्वल चांस to each and every item of the universe of being selected as a sample. On the other hand, haphazard sampling does not work according to the rules of sampling and does not allow every item an equal chance of being selected as a sample. Clear beta? Now move to the next topic. This is about the purposive and deliberate sampling. As it is very much clear from the name, this is in accordance with the purpose. दिस इज़ डेलीब्रेट, मर्जी से किया जाना। मीन्स मुझे ये कहा गया
कि अपनी क्लास के 5 स्टूडेंट्स की जल्द से एक डिसिप्लिन कमेटी बना कर दो। मेरा पर्पज़ क्या था, उसमें सिलेक्टेड मतलब सिंसियर बच्चे आने चाहिए, 3 गर्ल्स आनी चाहिए, 2 बॉयज़ आने चाहिए। मैंने अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, बिना सबको बराबर चांस दिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा सिंसियर 3 गर्ल्स लग रही थी, वो मैंने कमेटी में डाल दी। और जो 2 बॉयज़ मुझे सबसे ज़्यादा सिंसियर और सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट लग रहे थे, वो भी मैंने कमेटी में डाल दिए और मेरे 5 बच्चों की एक डिसिप्लिन कमेटी बन गई। दिस इज़ purposive and deliberate sampling. So now I think it is very much clear that deliberate sampling or the purposive sampling does not provide equal chance to each and every item of the universe of being selected as a sample. So, purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sampled items which in his opinion are the best representative of the universe. Probability of getting selected is not equal. अभी अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 5 बच्चों की मैंने अपनी मर्जी से ही कमेटी बना ली, मैंने किसी को भी और चांस दिया ही नहीं. दिस इज़ पर्पसिव एंड डेलिब्रेट सैम्पलिंग. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अब अगर थोड़ा सा मैं पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पर बायसनेस बहुत ज़्यादा आ गई. सिंपल तो बहुत है, बड़ा कन्वीनियंट सा था, बड़ी जल्दी हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, सिंपल सा है, लेकिन एक ये बायस्ड मेथड है. बायसनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बायसनेस इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसे इक्वल चांस दिया ही नहीं और अपनी मर्जी से उसे सेलेक्ट कर लिए. सो ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड मेथड है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग. स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप. So what according to this method? According to this method, first the universe or population is divided into stratas or groups according to the characteristics, according to the different characteristics, according to the diversities, and on the basis of these groups a fixed number is taken as sample. Means quota is fixed and on the basis of this quota द सैम्पल्स आर सिलेक्टेड. मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे आपकी क्लास का मुझे एक डिसिप्लिन कमेटी बनानी है, तो डिसिप्लिन कमेटी के लिए मुझे क्या करना है, आपकी क्लास को पहले मुझे ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ग्रुप्स में मैंने कैसे किया, पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया बॉयज़ एंड गर्ल्स का. ठीक है, दिस इज़ द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. फिर मैंने इसको बनाया रूरल और अर्बन. मेरे एक और कैटेगरी बन गई कि गर्ल्स कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज़, गर्ल्स कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज़, बॉयज़ कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज़, बॉयज़ कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज़. अब मैंने आपकी क्लास के 4 ग्रुप्स बना लिए. अब ये तो हो गया स्ट्रेटिफाइड, मतलब मैंने स्ट्रेटास डिसाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ आई एम फिक्सिंग द कोटा कि हर कैटेगरी में से मुझे 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं. तो टोटल कितने हो गए? 8 स्टूडेंट्स. Means first strata is fixed, that is the entire population is divided into groups or stratas, and from this strata, keep in your mind, these stratas are based on the diversified characteristics or features, and from these stratas a fixed number of samples or fixed number of items are selected. Clear beta? So this is about the stratified sampling or mixed sampling. According to this method or this method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics, and these groups are known as stratas. Now, according to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented. And it is also called mixed sampling because it is a combination of random and purposive sampling. अब यहाँ पर random और purposive sampling का मिक्सचर कैसे हो गया? मेरा पर्पस क्या था? बॉयज़ और गर्ल्स को लेना. मेरा पर्पस क्या था? रूरल और अर्बन को लेना. और फिर मैं क्या ले रही हूँ? जितने भी गर्ल्स रूरल एरिया से आ रही हैं उनको मैं चांस दे रही हूँ.
इट मे बी पॉसिबल कि 10 गर्ल्स हैं 10 बॉयज़ हैं, तो मैं उनका क्या कर सकती हूँ, अलग अलग स्लिप बनाकर डाल सकती हूँ और उसमें से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इससे हम इसको मिक्स्ड सैम्पलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर फिर बायसनेस आ गई। बायसनेस कहाँ से आ गई? जब मैं स्ट्रेटा बना रही थी तो ये अपने आप में ही बायसनेस थी। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिस कर सकती हूँ, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरा फेवरेट है जिसको मैं चाहती हूँ कि डिसिप्लिन कमेटी में आए, तो मैं ग्रुप ही उसके अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। मीन्स स्ट्रेटास जो बनाए जाते हैं वो इन्वेस्टिगेटर बनाता है, और इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि आप कह सकते हो कि जब सारी बार इन्वेस्टिगेटर के हाथ में आ जाती है तो वहाँ पर बायसनेस ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर आ जाता है। सो दिस मेथड इज़ ऑल्सो not free from the biasness. In fact, this method is very much affected by the biasness or partial behavior of the investigator. Got it, beta? Now move to the next. This is about the systematic sampling. Systematic sampling refers to a sampling in which systems are followed. जैसे कुछ सिस्टम्स कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, इसमें ध्यान से समझिए। जैसे मैंने ये रखा कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने मल्टीपल ऑफ 10 लेना शुरू कर दिया। जिस बच्चे का रोल नंबर 10 है वो सिलेक्ट होगा, रोल नंबर 20 है वो सिलेक्ट होगा, रोल नंबर 30 है वो सिलेक्ट होगा, 40 है वो सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने एक सिस्टम को फॉलो किया है। जैसे एवरी nth ले लिया, एवरी 5th भी ले सकती थी मैं, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ सैम्पल। मुझे जितने भी सिलेक्ट करने हैं मैं उतने सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरिट तो इसका ये हो गया, दिस इज़ वेरी सिंपल मैथड। देन इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अब यहाँ पर फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्सनल बायसनेस कैसे? वैसे तो अगर देखा जाए तो अब जैसे मुझे आज की डेट में आपकी क्लास पकड़ा दी गई है, आपकी क्लास के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में नहीं आए थे क्योंकि 10th तक मैंने पढ़ाया नहीं। अब आप 11th में मेरे पास हो, तो मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं जानती। अगर मैं ये बात करूँ कि मोर देन 120 स्टूडेंट्स आर देयर, और उनमें से मैं मुश्किल से 10 या 12 बच्चों को बाय फेस जानती हूँ, कि बाय नेम तो मैं किसी को भी नहीं जानती। और मुझे अभी ये कहा गया कि आप 10 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनाइए। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये ढूंढना कि कौन से 10 स्टूडेंट्स को लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्या सिस्टम रखा, एवरी 10th means the student having the sequence 10, 20, 30, 40, 50, और मैंने 10 या 12 बच्चों की एक टीम बनाकर रख दी। ये मेरा बन गया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब यहाँ पर मेरी बायसनेस नहीं आई, लेकिन अब आप ये सपोज करिए कि मैं आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को जानती हूँ। जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो विद इन 1 वीक मैं आपके क्लास के सभी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाऊंगी, मुझे पता लग जाएगा। अब वहाँ से मुझे ये पता लगा कि आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, या 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, या एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा है, उसका रोल नंबर 8 है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल ऑफ 10, अब मैं क्या ले लूँगी, मल्टीपल ऑफ 8 ले लूँगी। ये मेरे हाथ में आ गया। मीन्स बायसनेस तो यहाँ आ जाती है। हम यहाँ तो वैसे तो हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर के बायसनेस से नहीं है, लेकिन जब हम किसी को वेटेज देना चाहते हैं तो फिर हम वेटेज भी इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डीमेरिट एक और क्या आ रही है, डीमेरिट इसमें ये आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल चांसेस इज़ क्वाइट लेस। मतलब हम सबको चांस दे ही नहीं रहे। जो स्टूडेंट 10 का जिसका रोल नंबर 10 का मल्टीपल नहीं था, हमने उसको चांस दिया ही नहीं। हमने चांस सिर्फ किसको दिया था, द स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर एज मल्टीपल ऑफ 10। मतलब हम यहाँ इक्वल चांसेस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। दूसरा, इफ़ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस देन दिस मैथड विल बी लीस्ट इफेक्टिव। अब फिर से समझो, जैसे मुझे शर्ट लेनी थी, मैंने आपको बताया, या तो सारी की सारी शर्ट एक जैसी हैं, मतलब एक ही ब्रांड की हैं, होमोजीनियस है, फिर मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आपके घर में एक मिठाई का डिब्बा आया, वो सारे के सारे जो मिठाई है एक जैसी है, 40 पीसेस हैं उसमें, सारी की सारी मिठाई एक जैसी है। अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें से 5 पीसेस सिलेक्ट कर लीजिए। आप क्या कर रहे हो, एवरी 8th पीस को उठा रहे हो। व्हाट इज़ द पर्पज़? जब सारी मिठाई है ही सेम
तो आप 1 2 3 4 5 रैंडमली कोई भी उठा सकते हो, बजाय कि आप यहाँ सिस्टम बनाओ कि हर 8th टुकड़े को आप उठाओगे। मीन्स अगर होमोजीनियस है तो हमें किसी सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नाउ दिस इज़ अ कोटा सैम्पलिंग। अभी अभी मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बताया था। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ही जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो है कोटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फर्स्ट द यूनिवर्स इज डिवाइडेड into stratas on the basis of diverse characteristics, on the basis of differences, on the basis of different features, and out of these stratas quotas are fixed, that is how much percentage of boys will be taken, how much percentage of girls will be taken in order to prepare a discipline committee. This is the quota sampling. Clear beta? स्ट्रेटिफाइड से ही हम कोटा सैम्पलिंग में आते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ तक तो हमारी स्ट्रेटिफाइड ही होगी। देन सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड. Investigator selects the fixed number of items from each group to frame a sample. This is not very expensive. This is high risk of personal biases. क्योंकि अगर मुझे बॉयज़ ज़्यादा लेने हैं तो मैं बॉयज़ का परसेंटेज बढ़ा दूँगी, अगर गर्ल्स मुझे ज़्यादा लेनी है तो मैं गर्ल्स का परसेंटेज बढ़ा दूँगी। मैं स्टेटस को भी अपने हिसाब से कर सकती हूँ, पॉपुलेशन को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में. मीन्स अगेन द बायसनेस ऑन बिहाफ ऑफ द investigator. Last, this is the convenience sampling. Convenience sampling, as it is very much clear from the name, this is convenient mode. अब यहाँ पर किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई इक्वल चांस नहीं दिए जा रहे, सीधा ही किसी को कहा और हो गया. सपोज करिए कि जब आपके रेगुलर क्लासेस होती हैं तो मैं कॉपीज़ चेक कर रही थी और 11 कॉमर्स सेक्शन ए में मुझे 10 कॉपीज़ वापस रिटर्न करानी थी. मतलब मैंने चेक कर ली और मुझे वापस भेजनी थी. मैंने बेल बजाई और जब मैं बेल बजाती हूँ तो या मेरे पास मासी आती है या जो भू भैया होते हैं वो आते हैं, दोनों में से कोई भी आ जाता है. कई बार वहाँ रैंडमली कोई और अगर पीएन घूम रहा हो तो वो भी मेरे पास आ जाता है. मैंने बेल बजाई और जो पियन ऊपर पद्मा मैम के पास रहता है वो मेरे पास कमरे में आ गया. मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने उसको कॉपीज़ दी और उसको बोला रूम नंबर 7 में जाकर ये कॉपीज़ रखो. मीन्स मेरा पर्पस सिर्फ ये क्या था कि उन कॉपीज़ को रूम नंबर 7 तक पहुंचा दिया जाए, कोई भी जाकर उसको पहुंचा दे. दिस इज़ द कन्वीनियंट सैम्पलिंग. मीन्स किसी भी एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेना, किसी को भी एक बच्चे से बात कर लेना, ये क्या कहलाता है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग. मुझे 11 कॉमर्स के किसी कोई इंसिडेंट हुआ है उस क्लास में, सपोज़ करिए कि किसी बच्चे ने कोई शरारत की है, मेरे पास उसकी रिपोर्ट आई है, मैं उस क्लास के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि मैं पता करूं उस क्लास में क्या प्रॉब्लम हुई है. मैंने उस क्लास के किसी भी बच्चे को जो वहाँ से पास कर रहा था, मैंने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इसके बारे में पता. मीन्स मेरा पर्पस सॉल्व हो गया. दिस इज़ द कन्वीनियंट सैम्पलिंग. क्लियर? सो in this method, sampling is done by the investigator in such a manner that suits his convenience. This method is the simplest and less expensive but unscientific and unreliable. जिसको मैंने बुलाया है हो सकता है वो बच्चा ही बायस हो, वो मुझे wrong information provide करे. So this is unscientific, unreliable. Investigator can use his techniques or methods for his statistical investigation study. Investigator can use his techniques और methods. ये हमने एक conclusion draw किया कि हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं जो उसको बेस्ट लगती है, जो उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग है, वो इसको यूज़ कर सकता है. सो हाउ मेनी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर देयर? देयर आर 6 सैम्पलिंग टेक्निक्स. द वेरी फर्स्ट वन, दिस इज रैंडम सैम्पलिंग. This is random sampling, then purposive and deliberate sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, and convenience sampling. Random sampling is the only technique that provides equal chance to each and every item of the universe for being selected as a sample, while the other 5
do not provide equal chance to every item of the universe. That's why these five comes under haphazard sampling. Clear beta? Random sampling, haphazard sampling. Got it beta? Now move to the next topic. Yes, this is about the convenience sampling. ये इसका एग्जाम्पल है कि ये पूरी पॉपुलेशन में से मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए कुछ स्टूडेंट्स को और यहाँ उनकी एक टीम बन गई. अब आप देख रहे हो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें ना तो मैंने सबको इक्वल चांस दिया और ना ही ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आया. ये येलो वाले स्टूडेंट्स में से इस कैरेक्टरिस्टिक का कोई नहीं आया, इस कैरेक्टरिस्टिक का भी कोई नहीं आया. रेड वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ग्रीन वाले कम आए हैं, ब्लू भी आए हैं. ये एक ही स्टूडेंट था, ये कोई बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन इसको भी हमने ले लिया. मतलब इसमें हम इक्वल चांस किसी को दे ही नहीं रहे, तो सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी हो सकता. नाउ व्हाट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा. अब आपको यहाँ ध्यान से देखना, एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग जो मैंने आपको कराया था लगभग वही सेम आपका कॉन्सेप्ट है. The very first one, the reliability of sampling data depends on the size. That is, it must be adequate. It should not be very small. It should not be too large. Then, method of sampling must be simple. हमें ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उलझन वाला मेथड हमें नहीं लेना. Then, this is biasness of correspondents and enumerators. Personal biasness of these people शुड बी एज लेस एज पॉसिबल. अभी हमने डिस्कस किया कि जो हैफेजर्ड सैम्पलिंग होती है, क्योंकि हम उसमें इक्वल चांस नहीं देते हर आइटम को, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस जो है वो स्टैटिस्टिकल स्टडी को अफेक्ट करना शुरू कर देती है. तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी है ये बायस्ड नहीं होना चाहिए. देन ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स. ट्रेन एन्यूमरेटर्स विल कलेक्ट रिलायबल डाटा फॉर इन्वेस्टिगेशन. हमें ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा डिपेंड्स ऑन द वेरी फर्स्ट वन, साइज ऑफ द सैम्पल, देन दिस इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग, देन द अफेक्ट ऑफ biasness of the investigator, then the training of enumerator. So with this topic is over. Now move to the last topic. This is about the sampling errors and non-sampling errors. Dear students, अभी हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया. तो आपने देखा कि सैम्पलिंग टेक्निक में कई बार जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, या अप्रोप्रिएट साइज़ नहीं होता, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिस हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में सैम्पलिंग एरर्स क्रिएट हो जाते हैं. अब हम इनके बारे में डिस्कस करें. द difference between sampling and census result under same circumstances is known as sample errors. Sample errors के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया. It can be minimized by taking large sample. ये हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा सैम्पल साइज़ छोटा है तो हम रिज़ल्ट भी प्रॉपर नहीं निकाल पाते. जैसे अभी आपने देखा कि कोविड टेस्टिंग हो रही है, रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, और आप लोग ये भी देख रहे हो कि पॉजिटिविटी रेट कितना आ रहा है. अभी मैंने देखा कि अपने हरियाणा में फ़तेहाबाद में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 36 पॉइंट समथिंग है, और पानीपत में ये 49.1 है. 49.1 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% टेस्टिंग में से पॉजिटिव आ रही है. अब रैंडम सैम्पलिंग अगर कोविड टेस्टिंग कम होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट भी प्रॉपर नहीं आएगा, और अगर सैम्पलिंग साइज़ बड़ा होगा तो रिज़ल्ट भी हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगा. सो इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं दो तरीके से. फर्स्ट, बायसनेस. पहले हम डिस्कस करें कि सैम्पलिंग एरर्स हैं कौन कौन से, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे. बायसनेस एरर्स अराइज ड्यू टू द बायसनेस ऑफ सिलेक्टर. अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो सकता है, और अगर वो बायस्ड है तो रिजल्ट जो है, जो सैम्पल हम लेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा और रिजल्ट्स उससे रॉन्ग कंक्लूड होंगे. सेकेंड, इसी में अनबायस्ड एरर्स अराइज
ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द सैम्पल, नॉट बिकॉज ऑफ द बायसनेस ऑफ द सिलेक्टर। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें रखोगे कि सैम्पलिंग एरर दो रीज़न से जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट इज ड्यू टू inadequate size of the sample, and secondly due to the biasness of the investigator. So if we want to minimize sampling errors, हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. Number one, sample size should be adequate. The size of sample should be adequate. It should not be too small. It should not be too large. और दूसरी बात हमें क्या रखना पड़ेगा? It must be, that is the sample must be least affected by the biasness of the investigator. Now move to the non-sampling errors. Non-sampling errors, such errors may arise intentionally or unintentionally. अपने आप ही आ जाते हैं. Arise due to negligence, lack of knowledge, non-responsiveness, etc. It can occur in both census or sampling method. अब इसको ध्यान दो. सैम्पलिंग एरर्स तो इसेंशियली सैम्पल टेक्निक में ही आएंगे, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं वो सेंसस मेथड में भी आ सकते हैं और सैम्पल मेथड में भी आ सकते हैं. इंटेंशनली, जानबूझकर हम अप्रॉक्सीमेशन लेवल बढ़ा दें, या इंटेंशनली पता ही नहीं लगा. जैसे अगर हम ये करें, आपकी क्लास के मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स इकट्ठे कर रही थी, तो उसमें मेरे पास 3-4 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ही नहीं. जब मैंने लिस्ट बनाई थी तो मैं नोट करना भूल गई थी. मैंने वहाँ अंदाजे से नंबर लगा दिए, अप्रॉक्सीमेशन हो गया. जब अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है तो एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. हो सकता है मैंने उस बच्चे के नंबर 70 दिए हों, लेकिन वो बच्चे के पेपर बहुत अच्छा हुआ था और उसका 80 on 80 था, मतलब एरर्स आ गए. तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो होती हैं, दीज आर द एरर्स जो आ जाते हैं, चाहे वो सेंसस मेथड हो चाहे वो सैम्पल मेथड हो. इंटेंशनली भी आ सकते हैं और नॉन इंटेंशनली भी आ सकते हैं. जैसे किसी बच्चे के 61 मार्क्स थे और मैं जल्दी से लिस्ट बना रही थी, मैंने उसके गलती से 16 मार्क्स लिख दिए, तो ये मेरा इंटेंशनली एरर जनरेट हो जाएगा. कई बार मुझे किसी काम को करना ही नहीं आता, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे सिचुएशन में भी एरर्स जनरेट हो जाते हैं. अब एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, what are the two types of errors, means differentiate between sampling and non-sampling errors. और साथ में वो कह रहा है कि which one of these two is more serious. बच्चे, non-sampling errors are more serious because they are not easy to detect. क्योंकि sampling error तो few representative items को दोबारा स्टडी करने से पता लग जाएंगे, लेकिन जो non-sampling errors हैं वो census method में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा. जानबूझकर गलती की गई थी या गलती हो गई है, हर आइटम को दोबारा स्टडी करना पड़ेगा. कहाँ पर मिस्टेक हुई है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. इस वजह से जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उनको ईजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इस वजह से उसका सॉल्यूशन भी हमें आसानी से नहीं मिल पाता, मतलब उसके लिए हम रेमीडियल मेजर्स भी अडॉप्ट नहीं कर पाते. सो नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर more serious as compared to the sampling errors. Got it, beta? Now this is your homework. Dear students, few questions are there. You are to do these questions in your pair notebook. Clear? Maintain your pair notebooks. Revise the topic thoroughly. Stay home. Stay safe. Do your work properly. Have a wonderful day.